Hello and welcome everyone to the 8th session of Hosla training program. So today's session is on resource management and this will be conducted by Mr. Kevin Dias. About him, he is a dynamic and accomplished HR leader steering global executive leadership roles in large multinational organizations and is currently founder and CEO of Sharia HR, a global HR consulting firm. He has a vast experience of 25 plus years in HR and IR, spreading over manufacturing, FMCG, retail, and service industry. I welcome you, sir. Thank you so much, Bhavya. Great. Should we start? Yes, all set. All right, great. Thank you. Let me share my screen. Let me know if this is visible. Is the screen visible? Yeah, it is just starting now. Okay. Yeah, it is now. Okay, lovely. All right. Firstly, good evening. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much for everyone having me here today on this session. मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं बात करूं आपके साथ, ताकि आप जो टॉपिक है आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें मैं आज आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें पेश करना चाहता हूं, so that you are able to use these things and grow your business. One is from my HR knowledge of 25 years, but the other is from practical experience of not only running my own company, but also from understanding how is it that you have to grow and be successful, correct? Now, one of the most important things, सबसे important चीज यही है कि human resource जो है, resources देखा जाएगा तो resources raw material भी हो सकता है, resources is money also, so a lot of things are resources, but one of the main thing is human resource, जो आपके साथ people जो काम कर रहे हैं. Now that includes each one of you जो आप आज मेरे साथ यहाँ पे हैं. All of us are resources, okay? तो वो ये रिसोर्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिसोर्स को कैसे हम, हाउ यू कैन यूज दिस रिसोर्स टू ग्रो योर बिजनेस, टू मेक योर बिजनेस नॉट ओनली बी रेडी फॉर टुडे बट रेडी फॉर टुमारो. दैट इज व्हाट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो माय अटेम्प्ट टुडे आपके साथ इज टू शेयर विथ यू कि कैसे दिस पूरा रिसोर्स साइकिल, कि हाउ वी हायर पीपल, सो कैसे करें, हाउ डू यू गेट द राइट पीपल इनसाइड योर कंपनी, क्या चीज उसमें देखना चाहिए. सो आई विल शेयर सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. कुछ फॉर्मेट्स हैं मेरे साथ जो आई विल शेयर विथ यू, ताकि यू गेट एन आइडिया कि हम क्या, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू शो विथ यू. फिर वहां पे उसके बाद व्हेन पीपल कम इनटू योर कंपनी, इट्स आल्सो अबाउट हाउ डू यू मैनेज परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, वो कैसे मैनेज करें. सेकंड, उनका जो लाइफ साइकिल है, वेदर इट इज सैलरी, वेदर इट इज प्रमोशन, वो कैसे मैनेज करें. And lastly, when you look at it, is money the only important factor? वो question हम answer करेंगे, or can we use other means to motivate people? So these are some of the things that I want to discuss with you today in the 1.5 hour, 1 hour 15 minutes that I have with you. Okay, so starting with that, here are all the aspects of human resource management. I'm sorry to interrupt, sir. I think there is some issue with the voice. Oh, is it? Yeah. So some of the participants are writing that it's very low. The volume is very low. Volume is low. All right. Let me check my Wi-Fi 1 second. Yeah, my Wi-Fi is fine. I'll just be a little more louder. Is this better? Yeah. Okay, great. So पहली बात तो ये है कि what is human resource management? उसमें क्या-क्या, what are the things that come when it comes to managing people? So first, before that, I would like to start with culture, workplace environment. We have to start from there. कि आपका जो कंपनियां हैं, जो आप you're starting or you're just going to start, उसमें क्या workplace environment है, क्या culture है.
What is that and why is that important? उसके बाद recruitment कैसे करें? How do I get the people? Right person. What do you mean by right person? Onboarding induction. How important is that? Performance management, time and attendance, payroll, and also finally training. How important is skill development inside your organization? Now, I know that at the start, the first question that comes in the mind is, "Arey baap re, it seems like a lot of money to spend." But no, let me share with you some simple practices. कुछ simple practices मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ that आप practically आप कर सकते हो in your companies. So, talent management means talent acquisition means recruitment. तो रिक्रूटमेंट कहाँ से चालू होता है? इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग. प्लानिंग की मेरी टीम में क्या कौन से तरह के लोग आना चाहिए, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स, और वो डिपार्टमेंट्स के अंदर कैसे लोग और कौन से पोजीशंस होना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू डूइंग एनी रिक्रूटमेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट डू दैट, you do not know ki what do I need in my company to run my company. So the very first thing is plan your resources. We will talk about that. Then there's recruitment, the selection process, onboarding. Now onboarding, many times people understand कि onboarding induction is just form filling. वो form देना है उनको और वो form भर के बाद everything is over. No. Induction and onboarding is the most important part in building a relationship with the organization and the employee. And we'll talk about that. Then comes performance management, compensation. Salary क्या देना चाहिए? Fixed salary देना चाहिए? Variable salary कैसा देना चाहिए? What should it be? HR operations, और वो कैसे करें? Development, training, career planning. अभी कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे आपके साथ जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करें. एंड फाइनली एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. जैसे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखते हैं, सेम वे वी हैव टू लुक एट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन क्या होना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड फाइनली वी विल एंड विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस और जो लॉज है तो वो कैसे आपको कंप्लाई करना है. So all this, इसका end outcome क्या है? This end outcome is, पहली बात, employee experience. जैसे आप customer experience देखते हैं, same way it is very very important to look at employee experience. Second, it is not only employee experience, it is employer experience. Means आपका experience, जो आप experience लेना चाहते हैं employee से, and similar employees क्या experience लेना चाहते हैं आपसे. So it is both ways. Employee retention होगा, productivity increase होगा, and finally company growth. So let's talk about these things in the next few slides. और अगर आपको कुछ questions पूछना है तो please chat box में डाल दीजिए या raise your hand, or if you would like to ask me a question, we can ask Bhavya to enable your mic so that you can ask me the question. Okay. The aim of this is to talk about practical experiences in your life. और मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं जितना भी आपका questions answer कर सकूं in a practical way, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. Now, what is the scope? So firstly, job analysis, recruitment. ये सब क्या है? What is job analysis? जो अगर आप एक कंपनी में आपको टीम रखना है, जैसे फुटबॉल टीम, अभी फुटबॉल टीम अगर बनाना है तो इट कैन नॉट बी अ टीम जहां पे मैं सिर्फ मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सब रखूं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर टीम बनाना है और विनिंग टीम बनाना है तो अलग अलग रोल्स है उसमें. एक गोलकीपर है, एक डिफेंस है, एक मिड लेवल प्लेयर है और एक जो गोल स्कोर करते हैं. और ये अलग अलग रोल्स अलग अलग टाइप के लोग प्ले करते हैं और उनमें अलग अलग स्किल्स रहते हैं. अगर गलत स्किल गलत जगह पे डाल दिया, जैसे जो गोल संभालते हैं उसको हम अगर आगे की तरफ रखें गोल स्कोर करने के लिए, तो आपको ही पता है कि क्या होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जॉब एनालिसिस. सो इट डज नॉट स्टार्ट विद सेइंग कि मैं ही सब कुछ करूं. पहला तो दैट इज रॉन्ग. सेकंड, सब में मेरे जैसे थिंकिंग होना चाहिए. दैट अगेन इज समथिंग दैट यू नीड टू रिवैल्यूएट, क्योंकि हर एक आदमी अलग अपना स्किल लेके आते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीम.
So let us understand that. So we will go through each of these points as we come to each point in detail. Now, what is the objective? ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? First, all of us are come into business to do profit and to grow the business. I don't think anybody is here to do business just to stay current जहाँ पे है वहाँ पे ही. Everybody wants to grow. Everybody wants to make more profit. So that is the first and foremost goal. So ये पूरा presentation is about the company and how is it that the company should grow. दूसरी बात, how should people work efficiently? To work efficiently, पहली बात तो ये है कि सही स्किल अगर हम लेके आए तो वो सही स्किल सही दिशा में काम करेंगे, and that is very important. Now अगर हम लोग ने सही स्किल लेके आए और वो काम करते आ रहे हैं, is that enough? वो बस हो गया, क्योंकि कंपनी बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है चेंज होते जा रहा है. आज JNK में बिजनेस के एनवायरनमेंट करंटली ऐसे है, फ्यूचर जैसे आप बढ़ते जाओगे वो फ्यूचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाएगा. तो कैसे आप हर एक आदमी जो आप हर एक मेंबर ऑफ योर टीम को आप उनके जो स्किल्स है उसको ऊपर ला लो, तो ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वी मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग दैट मैंने लेके आया पर्सन, मैंने उसको पगार दिया और ट्रेनिंग दिया, डन. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट मोटिवेशन. उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, क्योंकि जैसे उनको आप क्वालिटी दोगे सेम वे वो प्रोडक्शन में क्वालिटी देगा, सेम वे वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्वालिटी देगा. सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट. Many entrepreneurs make the mistake of not having HR policies. But मैं आपको बोल रहा हूँ कि it's very important कि आप HR policies बनाइए आपके कंपनी में. Start from recruitment से लेके end तक वो policies बनाइए, ताकि employees को पता होना चाहिए कि ये कंपनी में अगर मैं एम्प्लॉय ले आ जाऊं तो what is it that is applicable to me, वो होना चाहिए. Finally, it is very important that आपका leadership और जो लीडरशिप टीम आप लेने चाहते हो, जो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, वो लीडरशिप टीम हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द कंपनी कल्चर और आपका जो वैल्यूज है. जैसे आपने खुद डिफाइन किए कि जब मैं प्रोडक्शन करूं या कंपनी चलाऊं तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए टू कस्टमर, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए टू पब्लिक. दो सेम चीज आपके जो डायरेक्ट HODs में वो होना चाहिए. एंड द लास्ट इज, हर एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में कम्युनिकेशन और रिलेशन वो कैसा होना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज थिंग्स. तो अट्रैक्टिंग टैलेंट, इवैल्यूएटिंग टैलेंट एंड रिटेनिंग टैलेंट, 3 बिग बकेट्स में हम आज बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट, कल्चर. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, चैट बॉट में डाल दीजिए, फील दैट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या लगता है? Is culture important or culture values very important? Wow, it is vital. Very nice. I'm very happy to see this because culture actually जो है सबसे बहुत ही important चीज है जब भी आप कंपनी स्टार्ट करते हो या अभी आगे जाके चला रहे हो. Because when you define आपका जो मिशन है या विजन, और विजन जो है is that maybe you want to be one of the best in जो आप लाइन ऑफ बिजनेस में काम करते हो, JNK में यू वांट टू बी द बेस्ट, व्हाटएवर योर विजन इज. और वे विजन को कंप्लीट करने के लिए, साकार करने के लिए आप क्या करने वाले हो, वो मिशन. एंड लास्टली इट इज वैल्यूज. वैल्यूज में हम आवर पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स है उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज सिखाए हैं, उस बेस पे हम आगे बढ़े और अभी कंपनी चालू की. नाउ इन योर कंपनी, अगर आपका कंपनी एक लिविंग जागता इंसान था तो उसमें कैसे क्या वैल्यूज होना चाहिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन. तो वैल्यूज 4 या 5 जैसे आप ठीक समझे आप अपने कंपनीज में डिफाइन कीजिए. नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सिंपली राइट द वर्ड कि मेरे कंपनी में रिस्पेक्ट होना चाहिए, मेरे कंपनी में ओनरशिप जैसे वैल्यू होना चाहिए, या मेरे कंपनी में इनोवेशन की वैल्यूज होना चाहिए. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओनली राइट दैट मच. Okay, it is very important to understand that उसका डेफिनेशन क्या है. अगर मैं ये वैल्यूज को लाइफ में रखना है डेफिनेशन, सो हर एक वैल्यू का आप प्लीज अपने कंपनी में डिफाइन कर लीजिए. डिफाइन इट इन एटलीस्ट 3 or 4 sentences और एटलीस्ट इन सिनारियोज. अगर आप एक या
तो दिस इज हाउ यू लिव योर वैल्यूज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो चीज है आप सबको कम्युनिकेट कर लीजिए, ना कि एक स्टार्टिंग में जब वो एम्प्लॉय कंपनी में अंदर आए, बट बार बार हर एक टाइम पे 6 महीने में या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप बार बार ये चीज दोहराएं आपके एम्प्लॉयज में, ताकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड कि ये चीज इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी आपने चैट में बोला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप कम्युनिकेटिंग एवरी टाइम. और एक चीज होता है कि जब किसी एम्प्लॉय वैल्यूज के रॉन्ग साइड में चला जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका कॉन्सिक्वेंस भी तैयार कर लीजिए, ताकि सबको पता चले कि अगर मैं गलत चीज करूं तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So it is very important to have vision, mission, very important to have your values, very important to communicate your values. और ये जो चीज है आपके काम के हर एक एरिया में आना चाहिए. जब भी आप ग्रीट करते हो लोगों को सुबह में, शाम को, वॉचमैन जो है, अगर आपके ऑफिस में वॉचमैन है तो वो कैसा ग्रीट करते हैं, ईमेल्स जैसे आप लिखते हो वेदर टू योर स्टाफ और कस्टमर, आपके पॉलिसीज, ओके, आपके वर्क प्लेस में कैसे आप क्या रखना चाहते हैं, चाय मशीन, एवरीथिंग, आप मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हो, एवरीथिंग इज अबाउट योर कल्चर. आप जैसे बात करते हो कंपनी में, आप एज द ओनर ऑफ द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्चर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑन कल्चर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कल्चर अगर हमने डिफाइन किया और वैल्यूज जो हम डिफाइन किया और वो कम्युनिकेट किया, तो वो जो है हाउ डू यू ब्रिंग इट इनटू द रिक्रूटमेंट. ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिमेंबर वी स्टार्टेड बाय सेइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए. तो व्हाट इज द प्लानिंग? प्लानिंग इज एंश्योरिंग दैट यू आर एबल टू फोरकास्ट, यू आर एबल टू नो दैट आज मेरा बिजनेस के लिए मुझे कैसे टाइप के लोग और कौन से लोग चाहिए, एंड हाउ मेनी पीपल आई नीड इन ईच डिपार्टमेंट. वो एक प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है. और उसमें आप लेवल्स भी रख सकते हो, ग्रेड्स रख सकते हो. तो ग्रेडिंग सिस्टम अगर रख लिया तो इट इज वेरी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड मैं कहाँ पे करंट हूँ, मेरा फ्यूचर कहाँ पे होगा. सो यू हैव दैट डिफाइंड एंड दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लान. नाउ I think one of the biggest questions is, how do I get the right person? How do I get the right person inside? ये सब ठीक है सर, but how do I get the right person? So let us understand that. Now, when you are doing forecasting, अभी आपका करंट बिजनेस के लिए यू नो कि करंट बिजनेस इतने एम्प्लॉयज के साथ चल रहा है, बट फ्यूचर अगर ग्रोथ हुआ और आपको टारगेट अचीव करना है बाय एंड ऑफ मार्च, अगर आप अप्रैल टू मार्च रख रहे हो फाइनेंशियल ईयर का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंश्योर करें कि यू हैव इनफ पीपल टू रन योर बिजनेस. बिकॉज अगर कम लोग हैं एंड यू आर रनिंग योर बिजनेस, तो बर्नआउट होना, व्हाट वी कॉल बर्नआउट, क्योंकि ज्यादा जितना भी लोग स्ट्रेस पे काम करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी कम होते जाता है. और आज का नॉर्म है वे 85% to 90% ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द नॉर्म, और 80%. Now वहां से अगर कम होते गया तो the loss is to the company. So therefore it is very important for you to understand कि आप how are you managing your human resource, how are you planning. अगर मैनेजर चाहिए तो मैनेजर किस टाइप के मैनेजर चाहिए और उनके नीचे कितने लोग आना चाहिए. So typical जो है एक सुपरवाइजर 12 या 15 के स्पैन पे काम करते या 20 के स्पैन पे काम करते, that is efficient. But प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीनरी एटसेट्रा. तो ये जो नॉर्म्स है आप रख लीजिए एंड कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर प्लानिंग योर रिसोर्सेज. सो व्हाइल प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस फ्यू थिंग्स इन माइंड. पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपके कौन से प्रोडक्शन लाइन आगे फ्यूचर में कहाँ आगे बढ़ने वाला है, या आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो कौन से सर्विस आपका ज्यादा होने वाला है इन द फ्यूचर, जहाँ पे आपका रेवेन्यू ज्यादा होने वाला है. तो वो इंपॉर्टेंट है आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड इज योर ह्यूमन रिसोर्स प्लान. सो फर्स्टली फोरकास्टिंग, दूसरी बात आइडेंटिफाइंग कि कैसे होना चाहिए रिसोर्स, एंड अभी नेक्स्ट हम लोग वही चीज पे बात करेंगे. एंड फाइनली इज द गैप, कि क्या अभी आपके पास है, शॉर्टेज है, अगर बिजनेस ग्रो हुआ तो ऐड करना चाहिए, अगर एट्रिशन हुआ तो उसको क्या हम रिप्लेस करना चाहिए, क्या किसी और को वो काम दें. I think it is very important to replace before you can understand whether I can split the job and give it to
existing people. It is very important for you to understand that. And agar surplus manpower hai, especially production areas, etc., it is very important for you to do time and motion study before you decide ki surplus hai. Okay, so this is what best of the best companies do. आप भी ये चीज आप कर सकते हो. Okay, now before I move forward, एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या सब आपके कंपनीज में जॉब डिस्क्रिप्शंस है हर एक रोल का? फैंटास्टिक सुमेरा. Oh, even though it is a startup, very good. So बाकी all the other people, do you think you have job description for हर एक role in your company? Not yet. Okay. Now, what I'm going to show you, thank you Sheila, thank you Rida. So what I'm going to talk to you now is, job description अगर बनाया तो उसमें क्या होना चाहिए, because it is a very important document. पहली बात तो job description जिस defines कि जॉब में और रोल में क्या होना चाहिए, और दूसरी बात कैसे स्किल्स या एजुकेशन या एक्सपीरियंस वो जॉब में आना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका है इज एक्चुअली अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट. नाउ यू विल बी अंडरिंग व्हाई मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है. कि जब भी आप रिक्रूटमेंट करने जाते हो, वेदर naukri.com और प्लेसमेंट एजेंसी या वॉक इन्स या जहाँ पे भी आप जाते हो, आप पहला तो जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो. The way you write your job description, उसमें words, उसमें कंपनी के बारे में, उसमें कैसे फॉर्मेट में डाला है, tells a lot about the company. आपके कंपनी के बारे में वो बात कर. The document talks about the company. तो इसीलिए please pay attention when you are doing your job descriptions. Okay? तो job description में क्या होना चाहिए? पहली बात, critical job, वो job में क्या critical है. बहुत सारे जगह में देखा हूं कि नॉर्मली 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स लिखते हैं. इतना मत लिखिए. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 15 पॉइंट्स, 10 to 15 पॉइंट्स जो क्रिटिकल है. और क्रिटिकल का मीनिंग ये है कि वो जॉब में अगर ये स्किल नहीं है तो ठीक है मैं ले, अगर नहीं है मैं वो कैंडिडेट को मैं सिलेक्ट ही नहीं करूंगा. सो दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल. सो क्रिटिकल आप पहला वो लिख लीजिए. That is, I'm showing you some examples. मेरे पास 2-3 examples हैं जो आपको दिखाता हूँ. So one is very critical. दूसरा important. तो important में आप बाकी चीज लिख लीजिए जो आपके नजर में जो preferred है या कुछ ऐसा special चीज है जो आप डालना चाहते हैं, वो important. But critical is very important because अगर वो कैंडिडेट में वो critical competency और skill नहीं है, आप प्लीज मत लीजिए, because that will be wrong for your company. So वो फुटबॉल का जो एग्जांपल मैं देना चाहता था और दे रहा था, अगर गोली में उसका जंप मारने की क्षमता, बॉल को देखने की क्षमता, पंच करने की क्षमता अगर नहीं है तो वो गोली नहीं बन सकता. He may be able to kick the ball, he may be able to play football, but उसका रोल जो है, जो क्रिटिकल 3 चीज या 4 चीज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके, I'm going to show you some examples of job description. तो ये जो एक एग्जांपल है, प्रोडक्शन का एक एग्जांपल है. तो प्रोडक्शन में देखिए, आप फॉर्मेट देख लीजिए. पहले फर्स्ट पार्ट इज पोजीशन का डिटेल्स. ओके, कि क्या जॉब का क्या टाइटल है. ये प्रोडक्शन प्लानिंग का जॉब डिस्क्रिप्शन है. नाउ कहाँ से आप टारगेट करना चाहते हैं. नाउ से फॉर दैट एग्जांपल दैट किसी ने पूछा है, इफ आई हैव टू ऑर्डर अ कुक, तो वो आप कहाँ से पहले लेने चाहते हो. रेस्टोरेंट से, 5 स्टार होटल से, आउटसाइड ऑफ JNK, विद इन JNK में कहाँ मिलेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ओवर हियर. फिर
ये जो ग्रेड क्या होगा उसका, मींस कंपनी में वो कौन से लेवल में आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब, सैलरी। तो ये होगा आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी देखिए नीचे, भव्या, एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? Yes, sir. ओके, लवली। नाउ आप देखिए इधर 8 क्रिटिकल चीज लिखे हैं, ओनली 8। और अगर देखो जे नीचे जाके ऑलमोस्ट 20 लाइन आइटम्स है, मगर बाकी का जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट नॉन क्रिटिकल में आ रहा है। तो हर एक रोल में आप प्लीज ये जो क्रिटिकल एरियाज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखो ये साइड ऑर्ग स्ट्रक्चर लिखा है। अभी आप पूछोगे जॉब डिस्क्रिप्शन की जरूरत क्या है इसमें, बिकॉज जब भी आप किसी के पास जा रहे हो, वेदर यू आर हायरिंग अ कुक और अ शेफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे वो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट कर रहा है या रेस्टोरेंट मैनेजर के रिपोर्ट करने वाले हैं, वो कहाँ पे है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट दैट, ताकि जो भी कैंडिडेट आए ही नोज कि यहाँ पे मेरा पोजीशन है और यहाँ पे मैं रिपोर्ट करता हूँ। नॉट ओनली दैट, उसको ये भी पता है कि अगर मुझे ग्रो होना है तो कैसे मेरा ग्रो होगा। दैट इज द वे दिस इज। अभी आप देखो इधर कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रिपोर्टिंग, जो एसेंशियल और डिजायर्ड। अभी ये मैंने हम बाइफरकेट क्यों किया है कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एसेंशियली आपको से 2 इयर्स ही चाहिए, बट अगर किसी के पास 3 इयर्स है या 4 इयर्स है वो डिजायर्ड, बट 2 इयर्स के नीचे में नहीं लेना। सो सिमिलरली लाइक दैट, अगर वो कुक के एग्जांपल में अगर उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ही मैं लूं, 1 ईयर नहीं। सो दैट इज एसेंशियल। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस मींस व्हेन यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल स्किल्स, और वो कौन से एरियाज में आप मेजर करने वाले हो। प्रोडक्शन एरिया में प्रोडक्टिविटी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट, वेस्टेज, कॉस्ट, वो सब आ जाता है। कुक में यू विल हैव डिशेस, व्हाट इज इट दैट ही इज प्रिपेयरिंग, अगेन यूज ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, ये सब चीज आ जाएगी। एंड फाइनली आप देखिए इधर क्रिटिकल स्किल्स 1 to 10 पे हम लोग ने इधर क्रिटिकल स्किल्स को मैप आउट किया है कि अगर हम ये स्किल जो समझो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, बिकॉज ये प्रोडक्शन मैनेजर है, वो लोगों को से के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो उनका स्किल इन कम्युनिकेशन हाई होना चाहिए। दूसरी बात लीडरशिप, वो मैनेजर ही है, मैनेजर के ऊपर एक प्रोडक्शन इंचार्ज, तो उसका लीडरशिप स्किल एवरेज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एवरेज तौर पे कलर किया गया। सो यू सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट कहाँ पे ये लेवल है। दूसरी बात, ये क्या पैरामीटर्स पे आप इनको इवेल्युएट करने वाले हो। और फाइनली योर स्किल्स जो है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप 1 to 5 भी यूज कर सकते हैं, 1 to 10 इज ऑल्सो देयर, आप लिख लीजिए एंड इन योर माइंड आपके दिमाग में ये आउटलाइन कर लीजिए। नाउ जब भी आप ये आउटलाइन किया, यू आर वेरी क्लियर कि मुझे गोली या बैक डिफेंडर या फ्रंट गोल स्कोर करने वाला, उसमें क्या स्किल्स होना जरूरी है और कौन से लेवल का एफिशिएंसी उसमें आनी जरूरी है। सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा पॉज लेता हूँ। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, आई एम हैप्पी टू आंसर। Okay, you're saying full screen. Okay, let me. If anybody has a question, they can raise their hand. The tab is at the bottom of your screen. Okay. Now, interview form. ये interview form कैसा होना चाहिए? तो ये example मैं आपके सामने रख रहा हूँ. Now, if you see here, education background. Now, education background में, does the candidate have the critical education background? आपका comments और आपका scoring. Now you see how important it is. आप देखा job description में आपने score लिखा था, job description में आपने essential लिखा था, job description में आपने critical चीज लिखा था. अभी वो same thing has to come in your evaluation form. नहीं तो क्या होता है, mainly the problem is
हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में तो लिख ही लेते हैं, बट जब इवैल्यूएशन करते समय वो जॉब डिस्क्रिप्शन या इवैल्यूएशन शीट में वो चीज लिखा नहीं, हम कुछ और चीज इवैल्यूएट करते हैं, देन दैट मिसमैच जो होता है, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन person getting the right person inside the company. So therefore it is very important for you to write it here. अगर वहां पे आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखा था जैसे यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और वो एसेंशियल में क्या था, इट हैज टू बी हियर. तो आप अपना कमेंट्स डाल दीजिए कि आपने क्या देखा उसमें. सो इट इज नॉट जस्ट आपके दिमाग में ये चीज था, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट इट, ताकि आप एक कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट को आप कंपेयर कर सकते हो. This is what it's very important for you to do. I know ये चीज करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इंटरव्यू टाइम में थोड़ा टाइम लगता है लिखने के लिए, बट ये आप सोच लीजिए कि अगर आपने ये किया तो यू आर क्लियरली इंश्योरिंग कि मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा, मैं जो इवैल्यूएट कर रहा हूँ वो सेम है. एक कैंडिडेट और दूसरी कैंडिडेट को मैं जो इवैल्यूएट कर रहा हूँ वो भी सेम है. सो अभी मुझे क्लियरली पता है कि कैंडिडेट ए या कैंडिडेट बी कौन सा चूज करूँ. So this is what I wanted to share with you. Knowledge, candidate, फिर competencies. अगर आपने स्किल जो लिखा था उसमें, ये एक एग्जाम्पल है, आप ये चीज को चेंज कर सकते हो. तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये स्किल लिखा था कि पीपल मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर है. तो पीपल मैनेजमेंट का आपने क्या ऑब्जर्व किया, लिख लीजिए और स्कोर दे लीजिए. सो दिस इज अ कॉम्पिटेंट, दिस इज अ इवैल्यूएशन फॉर इंटरव्यू फॉर्म. Anybody has any questions? So ये हो गया job description. Now let's talk a little bit of recruitment process. Now recruitment process आज के तारीख में it has changed lot. जो पहले होता था आज बहुत चेंज हो गया. So जॉब डिस्क्रिप्शन पहला आपने बनाया, जॉब स्पेसिफिकेशन बना दिया, अभी जॉब एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है आपकी कंपनी के बारे में बात करें. वेदर यू सिलेक्ट समबडी और यू डोंट सिलेक्ट समबडी, प्लीज एंश्योर दैट दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन वेरी केयरफुली. आपका इंटरव्यू मैंने अभी आपको दिखाया था, इंटरव्यू फॉर्म कैसा होना चाहिए, और हमेशा इफ पॉसिबल 2 जन इंटरव्यू में बैठिए, एक आप और किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ताकि आप कंपेयर कर सकें. शायद आपने एक तरह से देखा है और उसने दूसरी तरह से देखा है. आई नो दैट दिस प्रोसेस इज नॉट इजी, बट अगर आपको राइट पर्सन इन द कंपनी चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यूज दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्पेशली अगर आप मिड लेवल या सीनियर लेवल का किसी एम्प्लॉय को आप चूज करना या एम्प्लॉय करना चाहते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज करें. ओके, नाउ सोशल मीडिया. टुडे आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो गया. सो कंपनीज ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स सोशल मीडिया में जाते हैं, वेदर इट इज लिंक्डइन, फेसबुक, और नॉट ओनली सिलेक्शन, बट अभी एक आपने एक डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कल्चर और वैल्यूज. ओके, नाउ वो आप कैसे वो टेस्ट कैसे करोगे. सो लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ स्टार्टेड गोइंग टू सोशल मीडिया, और उसमें देखते हैं कि वो कैंडिडेट ए सोशल मीडिया में बिहेव कैसे करते हैं. क्या वो इनके पास फ्रेंड्स है, क्या वो फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, रिएक्शन अच्छी तरह से देते हैं, क्या वो उनका जो विचार है लोगों से मिलते जुलते हैं. अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज आपके कंपनी जो कल्चर है उसने आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं स्टार्टिंग में, तो क्या ये कैंडिडेट उसमें फिट होगा. So a lot of recruiters today are looking at what is called social profile, और देखते हैं कि कैंडिडेट जो है वो कैसे है, लिंक्डइन में कैसे है, क्या पोस्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक. नाउ वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप उनका प्राइवेसी इन्वेड ना करें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे है रियलिटी में. इंटरव्यू में आप कुछ ही क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा, छोटा ही समय है. मगर अगर आप सोशल मीडिया में जाते हो तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि वो कैसे है. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्सन. वो कैसे है, उसका क्या ओनरशिप है, अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल.
दूसरा उसके परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे आपके कंपनी में, ओके, वो आपके साथ अकाउंटेबल रहेंगे, वो वैल्यूज के साथ जुड़ेंगे। आज का कंपनी आप यहाँ पे है, कल आप कंपनी को चेंज करने वाले हो क्योंकि आप नया सिस्टम लेके आओगे, कैसा टेक्नोलॉजी, क्या वो आपके साथ रहेंगे। सो परफॉर्मेंस। एंड लास्टली, आप हमेशा आज के लिए हायर नहीं करते हो, आप फ्यूचर या ग्रोथ के लिए ही हायर करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये जो चीज है आप उसमें चेक कर रहे हैं कि आज वो काम करेंगे, कल क्या ये कैंडिडेट फ्यूचर में ग्रो हो सकता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वांट टू लीव यू विद व्हेन इट कम्स टू रिक्रूटमेंट। नाउ मनी और कॉम्पनसेशन। नाउ पहली बात तो ये है कि कॉम्पनसेशन इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट कंप्लीटली एवरीथिंग। कॉम्पनसेशन इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट को कंपनी में लाने के लिए, बट कंपनी में रखने के लिए इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। कंपनी के अंदर रिटेन करने के लिए इट इज कल्चर, इट इज वैल्यूज, इट इज हाउ यू हैव इवैल्यूएटेड एंड गॉट द राइट पर्सन इनसाइड। सो स्टार्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हर एक रोल का बेंचमार्क सैलरी क्या होना चाहिए। मिनिमम वेजेस है और जो मार्केट में है वो वेजेस, तो एक तौर पे मिनिमम वेजेस, एक तौर पे जो मार्केट में चल रहा है फॉर दैट स्किल। ना वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेरिएबल कर सकते हैं या फिक्स्ड। मेरा एक्सपीरियंस में लोअर लेवल, सबसे लोअर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स सैलरी में ही रख लीजिए, और जैसे आप मिड लेवल और सीनियर में जाते हो तो थोड़ा वेरिएबल सैलरी ला सकते हो बोनस के तौर पे, परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 5% टू 10%। और जैसे आप एकदम सीनियर में जाते हो, जो आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स रहेंगे, आप 10% टू 15% जा सकते हैं। सो दिस इज माय इवैल्यूएशन टू यू ऑन कॉम्पनसेशन। I will stop here. Any questions? Okay. Now comes to performance. So you understood के job description, you understood culture, you understood job description, you understood कि how do I get the right person, और मैं कैसे मैं उसका skills define करूं, और how do I evaluate it in a recruitment process. So you understood all that. अभी देखते हैं कि once that person is inside your system, inside your company, before I do performance, please be very clear that induction और onboarding जो आप करते हो, it is very very fantastic, क्योंकि it is like somebody जो नए शादी है वो घर में आए और he wants to know or she wants to know कि अभी मैं यहाँ पे आ गया तो what ये घर में कैसे क्या चलता है. So it is very important for you to do an induction program जो उनकी कंपनी के बारे में बताएं. पॉजिटिव, उसमें कुछ चीज नेगेटिव मत लाइए कि अगर आप अटेंडेंस नहीं मार्क करते हो या लेट आते हो तो ये होगा, अगर आप काम नहीं किया तो ये होगा. आप ये चीज बिल्कुल बात ही मत कीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक ओनली पॉजिटिव. ये कंपनी ऐसा है, हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट ऐसे है, हम ग्रो कैसे करना चाहते हैं, और आप वो ग्रोथ में आप क्या रोल प्ले करने चाहते हैं. देन एचआर जो के पॉलिसीज जो मैंने बात किया आपसे कि इंपॉर्टेंट टू हैव पॉलिसीज, उसके बारे में बात कर लीजिए पॉजिटिव, नो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव. और परफॉर्मेंस उनका कैसे इवैल्यूएट होगा, उसका ग्रोथ कैसे होगा कंपनी, वही चीज आप बात कीजिए. सो वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, बिकॉज एक दिन में बहुत सारी चीज बात करने, कुछ चीज वो भूल जाएंगे एंड हमारे इंटेंट ये है कि वो भूले नहीं. So it is important to keep important small things in the presentation. आपके values, cultures, वही आप बात कर लीजिए. So this is how I would say you do it. अगर आप present, personally present नहीं है तो आप वीडियो एक शूट कर लीजिए आपका, ताकि everybody gets to meet the founder. वो बहुत ही important है, whether manager है या worker है या watchman है, everybody gets to meet the founder. इन पर्सन अच्छा रहेगा. अगर पर्सन में नहीं है तो प्लीज आपका एक छोटा सा वीडियो आप ले लीजिए और वो प्ले करे इंडक्शन के टाइम. नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस. पहली बात तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिफाइन कि किस बेस पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने वाले हो. नाउ
बहुत सारी टेक्निक्स रहते हैं, बट मेरे हिसाब से कीप इट सिंपल, क्योंकि आपको भी यही देखना है कि ये पर्सन ने आके काम किया या नहीं किया, और कैंडिडेट या एम्प्लॉय को भी ये देखना है कि मैंने काम किया तो क्या बॉस खुश है ये चीज से, और क्या वो ऐसे ही इवैल्यूएट कर रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, तो उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सिंपल 5 या 8 गोल्स जो आप हर एक एम्प्लॉय के लिए रखें. वेदर प्रोडक्टिविटी वाला गोल है जो डेली मीट कर सकते हैं, या मंथली मीट होगा, या क्वार्टरली मीट होगा, या 6 महीने के बाद मीट होगा, मगर आप मेन क्रिटिकल चीज वही 6 या 8. अभी आप जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने क्रिटिकल चीज लिखा था, उसमें आपने की एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन भी लिखा था. अभी वही सेम चीज यहाँ पे आना चाहिए, तो कंटिन्यूटी रहती है. तो जैसे सो इट मस्ट बी ट्रू, जो एम्प्लॉय के लिए वो जो मस्ट बी ट्रू कॉन्सेप्ट है. मैंने कंपनी में पहली बार रिक्रूटमेंट में इसने ऐसा बोला था, मैं ज्वाइन किया उस टाइम पे भी ऐसे ही बोले हैं, अभी जब इवैल्यूएशन के टाइम पे भी वो ऐसे ही बोल रहे हैं. तो वाओ, कंटिन्यू है, तो कोई किसी को मुझे रॉन्ग चीज नहीं बता रही है कंपनी. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग राइट फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके यहाँ तक इट हैज टू बी कंटिन्यू. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्रिटिकल एरियाज, आई एम गोइंग टू शो यू वन फॉर्मेट, ओके, कि आप कैसे वो चीज को आप कैप्चर कर सकते हैं, और कैसे आपके कंपनीज के वैल्यूज और और स्किल्स जो है उसमें भी आप एवेल्युएट करते हैं. तो एक तरह से हो जाता है जो काम है. अगर अकाउंट्स वाले हैं तो ही इज डूइंग अकाउंटिंग, तो बिल्स, इनवॉइसिंग, कलेक्शन, अगर आपका जो फाइनल जीएल एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एक काम हो गया. मगर वो कैसे कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक स्किल जैसा हो गई. और लास्ट वो वैल्यूज जो आपका है. तो ये सब चीज जो है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस में आना चाहिए. तो व्हाट जो है वो उनका काम, हाउ जो है वो उसका कैपेबिलिटी, स्किल्स. ओके, अभी मैं आपके सामने एक फॉर्म रखता हूं जो यहाँ पे पेस्टेड है, मगर ये बहुत छोटा है, तो मैं आई विल शो यू द एक्चुअल फॉर्म. ओके, नाउ ये एक फॉर्म का मेन पेज है जहाँ पे एम्प्लॉयज का डिटेल्स है. तो ज्यादा मैं इस पे आई विल नॉट फोकस ऑन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कौन उसका अप्रेजल करेगा, कभी अप्रेजल करेगा, कौन उसका इवैल्यूएशन करेगा, ऑल दैट इज मेंशन्ड हियर. ओके, और आप नीचे ये ग्रिड दिख रहे हैं. नाउ एक्सेप्शनल, गुड, रीजनेबल, पुअर, और इसके सामने आप स्कोर्स देख रहे हैं. द बेस्ट अप्रेजल प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जहां पे आप स्कोर देते हैं. मेनी टाइम्स अप्रेजल प्रोग्राम ऐसे है जो हम अपने मन से लिखते हैं, गुड, अच्छा है, बुरा है, मन से. बट वो क्या होता है कि समटाइम्स वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं कि मैं अपने आप को गुड समझता हूं मगर बॉस मुझे एवरेज समझते हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए स्कोरिंग सिस्टम. तो एम्प्लॉय भी क्लियर है कि मुझे यही स्कोर मिला है, इवैल्यूएटर या बॉस जो है वो भी क्लियर है कि मैं ये स्कोर दे रहा हूं. अभी वो स्कोर का मीनिंग क्या है, गुड, एक्सेप्शनल, वो स्कोर बताएगा. ओके, सो फॉर्म जो है ऐसा होता है. यहां पे आप जो उनको करना है काम लिख लीजिए. यहाँ पे वो आप इवैल्यूएट कैसे करोगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे लिखा, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप कैसे इवैल्यूएट करते हो, बाय अ सर्वे, और वो सर्वे का स्कोर होगा. अगर वो स्कोर 5 आउट ऑफ 5 है तो मिनिमम उनको 3.5 मिलना चाहिए. तो वो यहाँ पे आप लिखोगे. उसका क्या वेटेज है, अगर 8 चीज लिखा है तो 8 चीज का वेटेज आउट ऑफ 100 क्या होगा, इसमें 20%, इसमें 30%, जैसे आपके कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे आप यहाँ पे रख लीजिए. और फाइनली ये जो आपका एम्प्लॉय का कमेंट्स और जो इसका इवैल्यूएशन करे उसका कमेंट्स, और ये स्कोर. और जैसे भी आप स्कोर यहाँ पे डालते हो ऑटोमेटिकली वो स्कोर का यहाँ पे वेट, इसका टोटल आ जाता है. नाउ आप सब चीज इवैल्यूएट किया, यहाँ पे उनका जो वैल्यूज है, उसका स्किल है, यहाँ पे आप लिख लीजिए. और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्कोर आ जाता है.
जैसे ये स्कोर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली ये जो पुअर गुड ये आई ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो अगर ये स्कोर से 350 है तो आप देख लीजिए यहाँ पे 350 कहाँ पे आता है, गुड में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉय गुड. ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेता हूं. एनी क्वेश्चन? Sheila ji, I think on job evaluation, job advertisement, I will take that point up at the end. Aap jara, if you just remind me to take that point up at the end, okay? All right. Now, next point is training. Now, starting में आपको यहाँ, if you remember, I said that it is important to get right person. वो right person को कैसे evaluate करें, और जब भी कंपनी में अंदर आए उसका इंडक्शन, और फाइनली अभी उस आप उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं. तो दैट इज ऑल फैंटास्टिक फॉर टुडे, बट नेक्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आपका कंपनी तरक्की की, एंड यू नाउ हैव अ न्यू टारगेट फॉर ग्रोथ. नाउ वो न्यू टारगेट में शायद सर्विस लाइन आपने चेंज किया, या जो वो एग्जांपल ऑन द चैट में आया था फॉर अ कुक, आपने कंप्लीटली न्यू मेन्यू लेके आए. पहले डेजर्ट्स इतने नहीं थे, आप वो चीज लेके आए, और प्रोडक्शन में आपने नया लाइन ऑफ प्रोडक्शन चालू किया, या मशीन्स आपने अपग्रेड किए. ऑल दैट इज अ चेंज, और वो सब चेंज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन ट्रेनिंग. नाउ दो टाइप के ट्रेनिंग रहते हैं. एक जो फंक्शनल ट्रेनिंग, जो वो जॉब के बारे में ट्रेनिंग. दूसरी ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर, दैट इज फॉर ग्रोथ. तो ये दो तरह के ट्रेनिंग रहते हैं, और ये दो तरह के ट्रेनिंग कैसे करें. I know that one of the biggest questions मेरे पास भी था जब when I run my own company, अरे बाप रे इतना ट्रेनिंग करना है तो is it so much of expense, कितना खर्चा करना है. So let me tell you that there is a simple way of doing training where you do not have to spend too much of money outside, but it is more effective. और वो क्या है? In the next few slides I will talk to you about that. Okay. So training is very important to bridge the gap, because हर एक आदमी does not come with 100 on 100. ये आप पहला you keep that in your mind. 100 out of 100 किसी के पास नहीं है. So किसी के पास 60 है, 70 है, किसी के पास 80 है. जो लोग 80 to 90 है, they are fit for your future. जो लोग थोड़े less है, there is also a need for you to train them. अगर वो trainable है, नाउ अगर वो ट्रेनेबल है तो प्लीज आप ट्रेन कर लीजिए, ताकि जो आप स्किल का में उस जो गैप्स है वो कवर हो जाए. नॉट बिकॉज लोगों को खुश रखने, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी हैज टू ग्रो, कंपनी हैज टू परपेचुएट, और उसके लिए ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है. आप उस नजर से देखिए. सो देयरफॉर अगर स्किल में गैप है या कॉम्पिटेंस में गैप है तो वो ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, और वो परखने के लिए इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. वो ऑन द जॉब जो है आप ऑलरेडी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनके साथ क्वार्टरली मंथली आप डिस्कशंस भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गैप तो निकल ही आ रहा है, दिख रहे सामने. सो यू नो दैट दीज आर द ट्रेनिंग नीड्स, दीज आर द स्किल गैप्स. सो देयरफॉर द ट्रेनिंग नीड्स टू एड्रेस दैट गैप. नाउ दैट इज व्हाट दिस होल एलिमेंट ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. नाउ ये एक सिंपल सा मॉडल 70-20-10, ये क्या है? नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. ये वेरी वेरी सिंपल वे ऑफ ट्रेनिंग पीपल, जो मोस्ट कंपनीज यूज करते हैं. आई ऑल्सो यूज द सेम टेक्निक. नाउ बड़े बड़े कंपनीज भी यही टेक्निक यूज करते हैं. पहले लॉट ऑफ कंपनीज यूज टू सेंड पीपल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और वो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग उस बेस पे होता था. बट आज की तारीख में वो सिर्फ 10% ऑफ द ट्रेनिंग. और वो क्यों? बिकॉज अगर कंपनी में समझो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, फुटबॉल का एक एग्जांपल ले लेते. वो जो गोली था जो गोल संभाल रहा है,
अभी अगर कंपनी के अंदर किसी उसको सिखा नहीं सकते कि वो जंप कैसे मारे, बॉल को पंच कैसे करे और कैसे वो बॉल को परखे कि वो कैसे कौन से दिशा में आ रहे हैं, अगर वो स्किल कंपनी में नहीं है तो वो स्किल आप बाहर से लेके आइए, एंड दैट इज द ट्रेनिंग। अगर वो स्किल कंपनी के अंदर है तो वो बाहर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनियां ने ये आइडेंटिफाई किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्किल कंपनी के अंदर है, इसीलिए तो हम लोग बिजनेस में हैं, इसीलिए वो फुटबॉल टीम बना रहे हैं, इसीलिए आपके पास वो रेस्टोरेंट है। सो द स्किल इज देयर। नाउ वो कैसे वो स्किल को और एक्स्ट्रा करे। सो 70-20 का मतलब ये है कि 70% ऑफ द टाइम ट्रेनिंग इज थ्रू एक्सपीरियंस इनसाइड द कंपनी। इसीलिए मैं जब स्टार्ट किया था मैं बोला जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी क्रिटिकल, वर्क कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट वेरी क्रिटिकल। नाउ आप देख रहे हो उसका कैसे आप मीनिंग लेने वाले हो। सो व्हेन दैट पर्सन इज इनसाइड, आप उनको किसी, सपोज एक अच्छा सा परफॉर्मर है, उनके साथ आप डाल दीजिए ताकि वो जो एक्सपीरियंस वो लेंगे वो एक्सपीरियंस वो अपने जॉब में लेके आ सकते हैं और अपने खुद के स्किल वो ऊपर लेके आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, हम दूसरों को देख के या किसी चीज को देख के हम सीखते हैं। सो दैट इज द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ लर्निंग। ज्यादा से मोर देन वन इज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिटिंग इन अ क्लासरूम, उससे ज्यादा हम चीज को देखे प्रैक्टिकल में, हम उससे ज्यादा सीखते हैं। सो देयरफॉर प्रैक्टिकल 70% आपका जो ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस में लेके आइए। 20% ऑफ योर ट्रेनिंग इज थ्रू ग्रुप्स। तो अगर आप कंपनी में कुछ चेंज या बर्ताव लाने वाले या इनोवेशन की जरूरत है या कुछ डिफरेंस इन अप्रोच, एक छोटा सा टीम बनाइए अलग लोगों का, एक ऑपरेशंस वाले, एक एचआर वाले, एक फाइनेंस वाले, और उनको बोल दीजिए कि आप ये चीज को कैसे सॉल्व करें। नाउ थ्रू दैट डिस्कशन you learn how to change and how to bring that skill। और आप तो है ही एज द ओनर ऑफ द कंपनी, उनको गाइड करने के लिए तो आप है ही, आप रिव्यू करेंगे। सो 20% इज लर्न दैट वे। अगर आप, इफ समबडी हैज टू लर्न अबाउट द कस्टमर, आपके सेल्स वाले के साथ जाके भेज दीजिए उनको, सो दैट ही नोज कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर बात कैसे करते हैं, कस्टमर क्या पूछते हैं, एंड देन व्हेन ही कम्स बैक ही नोज कि मुझे ऐसा करना चाहिए इन माय प्रोडक्शन या सर्विस। और सिर्फ 10% आप बाहर के ट्रेनिंग ले सकते हो। सो दिस इज अ वे ऑफ अ मॉडल ऑफ ट्रेनिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, क्योंकि कुछ आप स्टार्टअप्स है, कुछ एस्टैब्लिश कंपनियां हैं, तो स्टार्टअप के पास फंडिंग इज ऑलवेज अ चैलेंज और लिमिटेड, लेट मी नॉट से चैलेंज, लिमिटेड। तो फिर भी अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो ऐसे आप कर लीजिए। Finally, it is very important for you to have feedback, not of just training, feedback in everything that you do. So feedback जो है is about आप और एम्प्लॉय के साथ कैसे आप जुड़े। Now many times हम लोग सिर्फ वर्कर के साथ शायद बात करते हैं या स्टाफ के साथ बात, अगर छोटा टीम है तो it is not a problem, मगर जैसे जैसे टीम बढ़े, it is important for you to meet and ask feedback. It is very important. Induction का feedback, recruitment process का feedback, performance evaluation का feedback, working culture and आपका जो है वो feedback. The moment you get feedback, because अभी आप customer का feedback तो लेते ही हो, that is how you know that आपका जो service है या production जो है या whatever business में आप हो, वो customer के कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खुश रखें, यू आर गेटिंग फीडबैक। सिमिलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ वो फीडबैक मैं आपको एक छोटे कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। पहली बात तो फीडबैक लिया और उसके बारे में कुछ नहीं किया इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर फीडबैक लिया तो उसके बारे में कुछ करो। अगर कुछ एम्प्लॉइज ने कुछ फीडबैक दिया आपके लिए, वे भी वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में जो भी है, आप उसके बारे में कुछ सोचो और कुछ चेंज बर्ताव लेके आइए। अगर वो चीज में चेंज और बर्ताव नहीं ला सकते, लाइक फॉर एग्जांपल सर सैलरी लो है, सैलरी बढ़ाइए। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो करें,
बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनके पास वापस जाएं और बोले इस कारण के वजह से मैं ये नहीं करने वाला। नाउ मेनी टाइम्स पीपल ये सोचते हैं कि मुझे चेंज या फीडबैक लेके मुझे चेंज करना है, वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू से दैट ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये लिमिटेशन है, मगर शायद 1 साल के बाद मैं ये चीज ला सकता हूँ। यू नो, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, इट बिल्ड्स फीडबैक। अभी ये फीडबैक कभी लेना चाहिए? पहली बात तो व्हेन द पर्सन जॉइन्स, वहां पे आप फीडबैक लीजिए। फिर 6 महीना आप प्रोबेशन रखते हो, अगर प्रोबेशन नहीं रखते हो तो 6 महीने के बाद एक फीडबैक लीजिए, और फिर 6 महीने और 18 महीने या 15 महीने के बीच में एक बार आप जाके फीडबैक लीजिए। नाउ इट इज नॉट अबाउट वन ऑन वन फीडबैक, ग्रुप में भी आप ले सकते हो, मगर एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप फीडबैक लेते हो तो उसका जो बॉस है या सुपरवाइजर है उसको वो रूम में मत रखिए, तो खुले वो बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स सुपरवाइजर के बेस पे होता है। कंपनियां एकदम फैंटास्टिक है, जॉब फैंटास्टिक है, बट कभी कभार सुपरवाइजर उस चीज को नेगेटिव करता है। सो कीप दैट इन माइंड। और लास्टली, ये जो लास्ट पॉइंट है कॉफी विद एमडी, ये आप प्लीज रख लीजिए। जैसे कॉफी विद करण हमने ने देखा है टीवी पे, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कॉफी विद एमडी, और ये आप प्लीज कर लीजिए, संडे के दिन कर लीजिए, महीने में एक बार, महीने 15 दिन में एक बार, वॉट एवर योर फ्रीक्वेंसी, मगर करिए, ताकि लोगों को आपके जो थिंकिंग है, आपका जो विजन है, आपका जो एंटरप्रेन्योरल स्किल है और वैल्यूज है, वो उनको समझ में आवे, और जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो उनको समझ में आवे। इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस। उस कॉन्वर्सेशन में परफॉर्मेंस के बारे में बात मत कीजिए, वहां पे आप कंपनी के बारे में बात कीजिए। आपने शायद एक दिन जब कंपनी से आप जा रहे तो कुछ चीज आपने देखा है जो गलत हो रहा था, उसके बारे में बात कीजिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू लीव यू। सो मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वर्कप्लेस। नाउ मोटिवेशन इज नॉट बाय मनी, इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट बनाया कि सैलरी और मनी is very important to get the person in the company, but it is not important to keep him in the company. To retain an employee, it is, yes, you have to pay salary on time, you have to pay per minimum wages, आपका जो PF, ESIC, whatever deductions जो है as per the rules and regulations वो आपको करना चाहिए, but उससे कहीं ज्यादा is work culture, employee listening, motivation. Motivation के तो let's talk about a few things regarding motivation. Motivation means what? Now, लोग even if अगर किसी ने अच्छा काम किया, a simple उनको जाके उसके जगह पे लोगों के सामने जाके बोले well done, superb, केविन आपने बहुत अच्छा काम किया, that itself is motivation. या कुछ कंपनी ऐसे भी स्कीम्स लेके आते हैं अंदर ही अंदर, ताकि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो वो एक रिकमेंडेशन दे सके, तो ये भी करते हैं कंपनी। सो यू कैन डू दैट। कुछ कंपनियां ऐसे भी करते हैं कि एम्प्लॉय फीडबैक भी दे सके दूसरे एम्प्लॉयज को अनोनिमस, ताकि वो चेंज आ सके वो एम्प्लॉय में। सो मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी आप मोटिवेशन मनी दे दो, अ सिंपल कार्ड, a simple certificate, a simple pat on the back is all part of motivation. आप incentive schemes रख सकते हो, production incentive schemes, sales incentive schemes, support department के लिए भी incentive schemes रख सकते हो, जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस बेस पे आप इंसेंटिव डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया तो वो इंसेंटिव मिलते हैं। सो that is also a motivation for employees. So this is what I would like to say on motivation. एक स्लाइड है मोटिवेशन के ऊपर on reward and recognition जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, that is on the next slide. Coming to salary, but before that I thank you for saying that motivation is very important. और कंपनी में सबसे बेस्ट मोटिवेटर आप ही है, आप ही सबसे बेस्ट मोटिवेटर है, बिकॉज आप ही को पता है, हर एक एम्प्लॉय आपको पर्सनली आप पहचानते हो। दूसरी बात, उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप जानते हो। तीसरी बात,
यू नो कि कंपनी आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल, तो यू आर द बेस्ट मोटिवेटर। तो ये जो आपका रोल है प्लीज निभाइए आप, नॉट ओनली एज द एंटरप्रेन्योर जिन्होंने काम दिया है और पगार दे रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो द पर्सन हु मोटिवेट्स। कभी कभार लोग मिस्टेक करते हैं, उनको एक्शन लीजिए, बट प्लीज ऑल्सो इंश्योर कि मिस्टेक्स हम भी करते हैं। So it is also important to make that in your stride and ensure that आप उसको मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं करें। So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब भी आप ये चीज करते हो और सपोज एक एम्प्लॉई आपको, आप रिजाइन करके जाते हैं, वो बैक टू द कम्युनिटी जाते हैं, और जब भी वो बैक टू द कम्युनिटी जाते हैं तो आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके कल्चर के बारे में बात करेंगे 10 लोग से। वो छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, मगर वो 10 लोग से आपके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्रूट करते हो वही कम्युनिटी में, वही एरिया में, आप देखोगे कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। सो दैट इज द पावर ऑफ मोटिवेशन। तो सैलरी जो है, मैंने कुछ चीज बात किए हैं। सो सैलरी इज अबाउट वेजेस, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उस रोल के लिए मार्केट में अपने आप को कहाँ पे पैक करना चाहते हो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द कुक और प्रोडक्शन मैनेजर। नाउ समझो वो रोल के लिए आप उनको 20,000 पर मंथ देना चाहते हो, मार्केट में लोग उसको 35,000 दे रहे हैं। नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप 35,000 दे, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ पे आप देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू। नाउ वो रोल को आप 15,000 भी नहीं दे सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज बी समवेयर मिडिल, तो थोड़ा ऊपर। अगर सबसे हाई 35 था तो आप एनीवेयर बिटवीन 25, 27, 28 तक जा सकते हो। दैट इज अ गुड सैलरी बेंचमार्किंग स्ट्रेटेजी। हाँ, कुछ रोल्स जो है जो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, लाइक द शेफ एग्जांपल, या द मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस एग्जांपल, लाइक द फाइनेंस हेड का एग्जांपल, बहुत ही क्रिटिकल है आपके लिए। उसके लिए आप सबसे टॉप लेवल पे सैलरी आप जा सकते हो। सो सैलरी इज नॉट कॉमन अक्रॉस, इट इज हाई फॉर दोज दैट आर क्रिटिकल, it is medium for those that are important and required to be there in your company. हाँ, अभी आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है कंपनीज के, जो रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर आपके हाथ में। पावर इसीलिए क्योंकि आप सबके सामने उसको रिवॉर्ड देने वाले हो, whether it is a certificate, whether it is money or it is a certificate, not important, but you are rewarding him. Now वो रिवॉर्ड आप एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, कभी भी एवरेज परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड नहीं देते, बट कंसिस्टेंसी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एमडी का, आप ओनर है, आपका अवार्ड फॉर बेस्ट वैल्यूज, आपका अवार्ड फॉर बेस्ट इनोवेशन, आपका अवार्ड फॉर बेस्ट सेल्स, ये सब चीज आप कर सकते हो विद इन द टीम। इसको एनुअल कर सकते हो, ये हाफ ईयरली कर सकते हैं आप, मगर इसको वेरी रेगुलरली कर लीजिए। बट एक जैसा हम ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं या फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, आप अपने कंपनी के छोटा सा एक अवार्ड सेरेमनी बनाइए, जो आपके लिए बना है, आपके एम्प्लॉयज के लिए बने, कंपनी के अंदर ही हो रहा है, आपकी कंपनी के प्रमाइसेस में ही हो रहा है। 1 घंटा, 1 आवर 2 आवर्स आप ले लीजिए और ये अवार्ड कर लीजिए। और वो अवार्ड सेरेमनी में जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है वो एम्प्लॉयज ही करना चाहिए, वेदर डांस, वेदर सिंगिंग, वेदर एम्प्लॉय के बच्चे लोग। नाउ यू सी व्हाट आप जो कर रहे हैं, आप सबको साथ में लेके आ रहे हैं, आप मोटिवेट कर रहे हैं और आप रिवॉर्ड दे रहे हैं। सो व्हेन यू डू दिस, मेनी टाइम्स जो एवरेज सैलरी है वो लोगों के दिमाग में फिट, वो निकल जाता है, और ये सब चीज जो है ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रहता है। सो प्लीज यूज दिस। स्पोर्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं टू योर एडवांटेज। ओके, मैं आई विल स्किप सम ऑफ दी स्लाइड्स ऑन प्रोविडेंट फंड, ESIC, बिकॉज अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस में आंसर करता हूँ, नहीं तो ये एक्ट्स जो है क्वाइट लार्ज है, क्वाइट एक्सटेंसिव है। मगर इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस जो है आप प्लीज कर लीजिए आपके कंपनीज के, ensure that you are 100% compliant.
okay, whether it is on provident fund, 12% on the salary, whether workman's compensation, ESIC, gratuity जो है once in 5 years के बाद जो पे होते हैं, maternity benefit, please आप ये जो compliance कर लीजिए, it is very important. I will move to the next slide because there are some important things that are there that I want to talk to you about. Yeah, I will come back to those slides later, but ये जो चीज़ है मुझे पहला डिस्कस करना है और फिर मैं वापस जाता हूँ. Now, resource is also about अलग अलग डिपार्टमेंट्स. तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे टेक्नोलॉजी, तो आपके कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे है, मीन्स हाउ इज इट हैपनिंग. नाउ वो चीज़ ईमेल्स जो है वो एक टेक्नोलॉजी हो गया. आप में ERP जो है जो प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर रहेगा, HR सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे HR के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, टैली, ज़ोहो जैसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो फाइनेंस के लिए यूज़ हो सकते हैं. ज़ोहो जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो CRM जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर्स रहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, फॉर योर बिजनेस. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अब सब चीज़ साथ में ले, स्पेशली स्टार्टअप्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिजिटाइज. तो आपका जो IT डिपार्टमेंट, ये जो वेरियस चीज़ जो है, वेदर इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन, ISO सर्टिफिकेशन, आपके कंपनीज में CCTV मैनेजमेंट, ये सब चीज़ जो है IT डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं या एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. तो ये अलग अलग रोल्स जो है मैं आपके सामने रखना चाहते थे, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि IT डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए एज अ रिसोर्स. नाउ ये चीज़ आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये चीज़ आप अपने अंदर ही क्रिएट कर सकते हो. दोनों ऑप्शंस है आपके साथ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू. कभी रिसोर्सेज मार्केट में मिलते हैं जहाँ पे एक जन 2-3 चीज़ कर सकते हैं साथ में. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पर्सन ले लें. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी यू डू दैट. मगर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर के जानकारी के बारे में प्लीज़ IT पर्सन को ट्रेन कर लीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन हाउस में भी एक नॉलेजेबल पर्सन, थोड़ा बहुत नॉलेजेबल पर्सन होना जरूरी है. The next is finance. Finance is a very important department. उसमें बजटिंग है. जो पहले मैंने मैन पावर प्लानिंग बजटिंग के बारे में बात किया था. दूसरे तौर पे फाइनेंशियल बजटिंग, ऑल्सो इनवॉइसिंग, बिलिंग, टैक्स, GST, ये सब जो है फाइनेंस, पेएबल, रिसीवेबल्स, GL एंट्री और फाइनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, P&L, ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. ये अलग अलग रोल्स हैं. शायद आज आप में से कुछ ये रोल प्ले करते होंगे. एक जूनियर होंगे आपके साथ जो ये काम कर सकते हैं. बट प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू हैव टू ग्रो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने क्यों ये 2-3 स्लाइड्स चूज किए, बिकॉज इफ़ यू हैव टू ग्रो यू मस्ट हैव समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, जो ये चीज़ को समझ सकते हैं और फ्यूचर में आपके लिए काम आ सकते हैं और ये चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. फाइनेंस में भी बहुत सारे चीज़ हैं जहाँ पे कॉस्ट सेविंग या एफिशिएंसी बढ़ा ला सकते हैं. जो पर्सन इज यू इन दैट जॉब वो ये चीज़ ला सकते हैं. सो वाइल आज शायद आप प्ले करते होंगे ये रोल, मगर आप ये चीज़ जरा देख लीजिए कि इज इट पॉसिबल कि यू शुड हैव समबडी हु इज क्वालिफाइड टू प्ले दिस जॉब. And last is sales and marketing. बिना sales और marketing, you are not able to take your product or service. So everything is a sales. So आपके कंपनी में भी हर एक आदमी को sales के बारे में बताइए, because everybody is a sales person. And then there are sales people who are able to do whether telemarketing, whether it is product servicing, promotions, social media marketing, जो आज एकदम strong है. It is very important that you have somebody who understands. मैंने भी एक चीज़ में गलती किया था. मैं सोचा था कि मार्केटिंग मैं खुद संभाल सकता हूँ. देन आई रियलाइज कि मेरा मार्केटिंग का नॉलेज इतना नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है. और इसीलिए फिर आई रियलाइज कि मैं ये डिपार्टमेंट में मुझे हेल्प चाहिए. एंड देन आई रियलाइज कि जब हेल्प किया तो इतने सारे चीज़ हो सकते हैं जो पहले मुझे पता ही नहीं था और मैं रॉन्गली करता था. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक रोल मैं स्टार्टिंग मैन पावर प्लानिंग की बात की थी हम लोग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक प्रोफेशनल पीपल, गुड पीपल
in your company so that गोली भी प्रोफेशनल, डिफेंस वाले प्रोफेशनल, मिडफील्डर और जो गोल स्कोर करने वाले वो भी एक वो स्किल में माहिर है ताकि वो गोल स्कोर करें. इट इज नॉट एवरी टाइम कि आप हर रोल प्ले कर सकते हो. एज अ स्टार्टअप शायद आप कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड प्लीज ये चीज आप देख लीजिए इफ यू वांट टू ग्रो एज अ कंपनी. ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर and ask if there are any questions. I think yes, sir. There is one person, Shabira Akhtar. She has raised her hand. Yes, Shabira. शबीरा जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो. All right. Any other questions? Any other person who wants to ask question? समीरा जी, आप चैट में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन है. Yeah, if you have any questions, आप Q&A section में भी लिख सकते हैं. हाँ, Q&A. Okay, we have another lady, Miss Sheila. Yeah. I'm allowing her to talk. Yeah. Hello everyone. Hello sir. This is Sheila, owner of Kamash for Women. Sir, I would like you to define the job advertisement in detail. Oh yes, yes Sheila. Thank you for reminding me. Thank you so much. Now, job advertisement. Job advertisement जो है, it is very important कि आप उसमें देखिए कि it is got enough information that attracts somebody. See, what is recruitment? Recruitment एक तौर पे देखोगे, it is a sales, it is a marketing, okay? Because you are attracting the most important resource in your organization, which is people. Now, many times companies make the mistake of writing एकदम simple में ऐसे लिख लिया और post कर. Don't do that. My request to all of you, my humble request to all of you is that वो मत कीजिए आप. पहली बात, write little bit about the company, little bit, 2 lines, 3 lines. और what will you write? शायद अगर उस रोल में सपोज आप आईटी पर्सन को हायर करना चाहते हैं, आपके कंपनी में क्या आईटी सिस्टम्स है वो उसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, या आपके कंपनी के ग्रोथ होने के कारण कौन से आईटी प्रोग्राम्स लाने वाले आप वो लिख लीजिए. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज जो आईटी वाले पढ़ेंगे वो पहले देखेंगे, ओ अच्छा ये कंपनी में ये प्रोसेसेस या ये सिस्टम्स है, वेरी गुड. फिर वो देखेंगे कि रोल क्या है, टाइटल. तो जॉब का जो टाइटल है इट इज इंपॉर्टेंट. आप अपने कंपनी में डेजिग्नेशन या जॉब टाइटल प्लीज अच्छी तरह से डिमार्केट कीजिए, ग्रेड्स अच्छी तरह से डिमार्केट कीजिए. और जॉब एडवर्टाइजमेंट में रोल के बारे में आप बताइए. वो जो मैंने बोला ना जॉब डिस्क्रिप्शन में क्रिटिकल चीज, वही चीज आप डाल दीजिए इन योर एडवर्टाइजमेंट. बिकॉज ये मस्ट बी ट्रू कॉन्सेप्ट आप हर एक चीज में लेके आइए. वो पढ़ लिया जॉब एडवर्टाइजमेंट, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा, इंटरव्यू में नहीं देखा, परफॉर्मेंस में देखा और ग्रोथ में भी देखा, सब चीज एक से एक लिंक हो रहे हैं. तो मस्ट बी ट्रू कॉन्सेप्ट आप क्रिएट किए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन शीला. Yes sir, thank you. Thank you. लास्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इज दैट एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहे हैं. तो पीपल मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी चेंज होते जा रहे हैं. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं. इवन इन JNK, when you look at today's population or working population of 25 to 35 or even 20 to 35, उनका जो needs है और वो समझना is very important. और वो needs is out of experience. उनको ज़्यादा हाई-फाई या not, they don't want things, they want simple experience. वो experience क्या है? वो experience ये है कि मैं जो आपने बताया है वही चीज़ कंपनी के अंदर है, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे काम करने की ओपननेस या काम करने की एबिलिटी मिले और मैं कंपनी के अंदर सेफ महसूस करूं.
Now, if you are able to create these kind of experiences in your company every day, no matter what the business challenge is, I'll tell you 100% you will be able to meet it. Because you are appealing to the emotion and you are appealing to the person. Or employee will do 100% everything to make your company a success. जैसे आप सोचते हैं धीरे धीरे वो लोग भी वो ओनरशिप लेके आएंगे, but only if you allow the experience to be wonderful. So please, मेरा एक है जो last मेरे I want to leave you with is environmental change होगा, technology change होगा, employees के expectation change होगा, वो जानना important है, but more important, please focus on experience. That is the future. आप experience अच्छी तरह से लेके आते हो, automatically you will ensure that you are future ready, you are growth ready. और ये sentence के साथ I would like to stop, and I know we still have a few minutes, and I wish you all the very best in everything that you're doing, but please ask me questions. Thank you. Sir, we have few questions in the Q&A section. If you want to take those questions. Yes, please. Bhavya, we have Aarti ji here. So if we can just let her ask her question. Sure. Yeah, Aarti ji, please unmute yourself and you can ask your question, please. Thank you, ma'am. Good evening, sir. So actually, I'm a financial consultant by profession. Yes. So as a financial consultant, I'm working alone. So I am planning to have one person, but right now I cannot afford their regular salary. So what I am planning is to hire them on incentive basis. तो उसके लिए मुझे क्या चीज माइंड में रखनी चाहिए जिससे, क्योंकि हमारी फील्ड में क्या रहता है कि हमारी फील्ड में हम बंदे को ट्रेन करते हैं एंड व्हेन ही गॉट ट्रेन वो अपना लाइसेंस लेते हैं एंड अपना काम शुरू करते हैं, दे थिंक कि हम भी कर सकते हैं काम. तो ये बहुत ज्यादा लूप होल्स है हमारे बिजनेस में. So Aarti, firstly, you need to look at minimum wages first. So because basic hai, I understand, maybe I was also in the same situation Aarti, आपके जैसे. So what I did is मैंने basic एक fixed salary decide किया था, and then I had given a variable pay based on performance. But मैंने और एक चीज किया था, I gave long term का एक बोनस जो 6 महीने 1 साल के बाद 2 किस्तों में वो एम्प्लॉय को मिले. बिकॉज अभी आपने एकदम सही चीज बोले कि that if that person comes in, come at least 1 year to 1.5 year वो रहे. अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, you're a financial person, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपने मैथ किया, you will know that if an employee is with you for 2 years, return on investment is maximum. It is marginal, diminishing marginal utility if you go beyond that, and if that person has not been able to skill themselves. So at least for 2 years. So take a long-term bonus that will keep him or her inside the company till then. क्योंकि वो important है आपको वो पर्सन को रिटेन करने के लिए. आप you're young, you're in the sense as a company. तो वो बोनस हम किस बेसिस पे रख सकते हैं? It is just a fixed amount, madam. So Aarti, just keep a fixed amount on कि वो क्या amount हो सकते ताकि वो रहे. Okay. It should not be too small कि बोले no problem जान दो. It should be something that I would like to stay. Okay. I think there are some questions. Let me startup, is it possible to have finance manager? See, I think it is important to have finance manager, Shashi, because you do not know finance yourself. Now you can either take a person on full-time basis, you can take a person on part-time basis, or you can outsource. But I think it's important. CRM as a topic is something that each of you decide कि कभी आपको CRM सॉफ्टवेयर लेना चाहिए. मगर CRM का जो प्रैक्टिसेस है वो आप कर लीजिए. What is that? सब क्लाइंट्स का डिटेल्स एक जगह पे है.
सब क्लाइंट्स को आप रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके प्रोसेस के बारे में, सर्विस के बारे में बता रहे हैं, you are able to send mailers etc to that customer. अगर आप वो processes आप कर रहे हैं, then you can decide कि कभी आप CRM लेना चाहते हैं. It is also not very expensive, madam. There are a lot of CRMs available in the market, so you can decide how to do it. But एक क्या होता है, CRM आने से एक discipline आ जाती है. Thank you. All right, sir. I think we are done with all the questions now. Yeah. There is one question, sorry. That said that, can we keep somebody on contract basis? So madam, you can do that. There is fixed term contracts that you can do. You can also put the person on third party roles. That also you can do. So you decide. So fixed term contract, start date, end date. Yeah, third party roles. But whatever you do, ensure compliance hai. I think, Bhavya, that's, Yeah, we are done with all the questions now. Thank you so much, sir. It was a very, very fruitful session, very knowledgeable. So I'm sure all the ladies must have gained knowledge and, all the pointers. They have taken down all the notes from you. So thank you so much, sir. And participants, please note that next session is scheduled for tomorrow at 3:30 p.m. All right, see you in the next class. Thank you so much, and Thank God bless every one of you and all the success. Namaskar. Thank you very much.